सबसे पहले एक बार मैं फिर से संदीप भार्गवा सर को स्टेज पे इनवाइट करूंगी, जो कि हमारे मॉडरेटर ऑफ द सेशन हैं। संदीप सर, संदीप सर हमारे नेशनल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं और सीईओ और फाउंडर लीप एडटेक के हैं। इन्हें 40 साल से भी ज़्यादा का नेशनल इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एरियाज़ में काम करने का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, founder and CEO of Sarthak Educational Trust and Secretary General NAAI. Next, I would request Dr. Sudhir Gupta, National Advisory Board Sarthak and MD Radiologist with 35 years of total experience in healthcare sector. Sudhir Gupta sir. Next, I would request Love Verma sir to please join us. Love Verma sir is former Secretary Government of India. Love sir has extensive administrative experience of more than 37 years, spanning a wide range of assignments, including 3 years as Secretary to Government of India. Love sir, please join us. I would now request MP Punya ji, Vice Chairman, All India Council of Technical Education, to please join us on the dais. MP Punya sir. Setting between local partnerships for disability inclusive development. Next, I would request Shri Rajesh Agarwal ji, Secretary, Department of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment. Many thanks for joining, Love sir, Punya sir, Dr. Agarwal. And now I would request our chief guest, Shri Rajiv Kumar ji, Chief Election Commissioner, Government of India. Rajiv Kumar sir, please join us. Thank you so much sir for joining. Now I'd request our moderator of the session, Sandeep sir, to please take over. Thank you, Nishtha. Good morning, everybody. Welcoming our chief guest, Honorable Shri Rajiv Kumar ji, on the dais. Along with, we have with him Mr. Rajesh Agarwal, Secretary, Department of Empowerment for Persons with Disabilities. We have other panelists, Dr. Jitendra Agarwal, Shri Punya ji, Mr. Love Verma, Dr. Sudhir Gupta as well. Thank you very much for this panel. This is the inaugural panel for our national conference, and the theme we have to have this for this panel is Global Partnerships for Disability Inclusive Development. So we would like to have a round robin kind of views from the panelists, and they will address the primary theme of the conference and set the context for further panels. So I would request each one of the panelists to come and say a few words. Maybe I'll start with Love Verma ji, who has been on our board for the last couple of years. Mr. Love Verma is a retired officer of the Indian Administrative Service of the 1978 batch, UP cadre, with extensive administrative experience of more than 37 years, spanning a wide range of assignments, including 3 years as the Secretary to the Government of India. He has served at senior positions in the Government of Uttar Pradesh in the State Departments of Health, Finance, Industry, Public Works, and others, and have done field assignments as District Magistrate and Divisional Commissioner in UP. He has also served as Principal Secretary to the Governor of Uttar Pradesh. Love Verma ji has been with us in our journey for Sarthak. I request him to have his views on this topic. Good morning, everybody, and a very warm welcome to all of you. And I'm especially thankful to Mr. Rajiv Kumar, Chief Election Commissioner, Government of India, and also to
Mr. Rajesh Agarwal, Secretary in the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Divyangjan, for gracing this occasion. I would like to share a couple of thoughts with you. After the passage of the Act, which was commented upon in quite detailed fashion in the earlier panel, what we need to do is we need to publicize more properly the fact that now the number of disabilities has gone up from 7 to 21. I think that kind of advocacy is lacking, and that is something which NGOs as well as the government needs to do on a very fast track. There has to be a concerted effort to make people aware of the fact that the number of disabilities has gone up, and what are we doing. For instance, with regard to sickle cell anemia, I am told that the Department of Tribal Affairs has undertaken some measures and has undertaken a mission in order to see that this disability is addressed. But what is lacking is the media attention to these kind of, actually these feel-good stories don't make their way into the media, and that is a very big, I think, drawback which we need to address immediately. As far as local partnership goes, I am happy to inform you that we are at Sarthak setting up a global resource center in Gurugram. Very kindly, the government of Haryana has given us land at a very nominal rate, and the building is also coming up in a big way. The amount which is needed, this is actually a very good example of a global partnership, which is what this session is all about, setting the theme. So this Global Resource Center is going to be a one-stop center where there will be advocacy, there will be training, and there will be skilling. So all three will be properly integrated at just one place. To give you an example, you must have heard of Dialogue in the Dark, where somebody is made to experience what a visually impaired person feels like by making him or her sit for about half an hour at a place where they are blindfolded, and they order lunch, and they come to know what it feels like to be a person with visual impairment. So these are the kind, and apart from this, we will be having training and skilling also. The cost of such a center is coming to almost 14 crore rupees, out of which 7.5 crore rupees has already been donated to Sarthak, but we are looking at another 6.5 crores and hoping that corporates and government will come forward and help us in this effort. So this is going to be a very big initiative by Sarthak. At one place we will be having this center in Gurugram, and hopefully it should be operative in the next year itself. We hope to finish the building by the middle of the year and then get it operative in the year itself. Apart from this, another idea of Glocal is IDEA, which is for NGOs, it is a platform to bring the NGOs together, and those NGOs which are working for the empowerment of persons with disabilities. This is the Disability Alliance, Indian Disability Empowerment Alliance, IDEA. That is the platform which has been set up by Sarthak, and there are almost 500 NGOs which are now working with Sarthak and which are being trained by Sarthak, and Sarthak is trying to identify their shortcomings and also helping to plug those gaps. So these are some of the initiatives of Sarthak. I'm happy to announce that they're also thinking of a university, but that idea is still at the very preliminary stages. Ultimately, the idea is to have a university which is solely devoted to persons with disabilities, which can offer courses which are approved by the RCI,
and help people be trained so that they can serve in this noble cause. These are the couple of things I wanted to apprise you about. I'm again very grateful to all the dignitaries who have come today and to all the participants. Thank you very much. Thank you, Love sir. Now I request our chief guest and all the esteemed panelists of the session to please proceed with lighting of the lamp. दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आप सबको गुजारिश करती हूँ. Yes, sir. Thank you so much. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. Thank you, Nishtha. Thank you for enlightening us and lighting of this lamp. It's always auspicious to have this. Moving on, I would now request Dr. M.P. Punia, who has been always a great supporter for us in all our endeavors, to give you a brief about Dr. Punia. Dr. M.P. Punia is specialized in the field of mechanical engineering, IC engines, gas dynamics, a lot of work, renewable energy and sustainable development. He is MTech from IIT Delhi. He possesses a vast experience of 30 years. He has published more than 90 research papers in national and international journals and conferences and published 10 books and developed 2 lab manuals. He has guided a number of MTech and PhD dissertations. Dr. Punia is a member of IST and Society of Automotive Engineers. Dr. Punia is presently serving as Vice Chairman AICTE since 20th January 2017. Thank you, Dr. Punia. Please have your word. Thank you. नमस्कार, सम्माननीय श्री राजीव कुमार जी जो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी जो आपका पूरा डिपार्टमेंट जिसकी आप पूरे देश में जो है दिशा दे रहे हैं सर, सम्माननीय श्री लव वर्मा जी, मेरे दोस्त जितेंद्र अग्रवाल जी, सुधीर गुप्ता जी और जो साथी आए हुए हैं पूरे देश से इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं AICTE परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हर साल हम कर रहे हैं, शायद पिछले 4 साल से जितेंद्र जी ये एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इस बार पार्टिसिपेशन मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, शायद सर्दी का टाइम है और कुछ कोरोना का भी ऐसा एक भय व्याप्त हो रहा है, तो शायद इस वजह से पार्टिसिपेशन कम है। पर इन्हीं साथियों के माध्यम से हमारी जो नीतियाँ हैं या हमारे जो प्रयास हैं ये पूरे देश में आगे बढ़ाएंगे। मेरा सार्थक से जुड़ना जो है करीब 11 साल पहले 10 साल पहले जो है आदरणीय अग्रवाल जी से मिलना हुआ। मैं एक भारत सरकार का संस्थान है NITTR के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, और जिसका काम टेक्निकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना है। मैं वहाँ पे नया गया था, डेपुटेशन पे गया था, जितेंद्र अग्रवाल जी से मिलना हुआ। ये मेरे पास आए कि सर आपका इतना बड़ा संस्थान है, भारत सरकार का संस्थान है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप लोग कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या। तो मैं क्योंकि उस संस्थान के लिए नया था,
और वहाँ के जो प्रोफेसर्स और जो सिस्टम था, मैं ज़्यादा जानता भी नहीं था। मैं जयपुर से, NIT जयपुर से मैं प्रोफेसर था और फिर वहाँ पे डायरेक्टर बन के गया था। तो मैंने वहाँ के सीनियर 2-4 प्रोफेसर्स को बुलाया कि इस तरह से क्या समाज के अंदर अपन इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, या बच्चा जो है जिसको दिव्यांग कहते हैं, जो नाम दे दिया है अपन ने, क्या इन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अपन कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या? इतनी बड़ी संस्थान है, इतने छात्र हमारे पास पढ़ रहे हैं, इतने टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, इतनी बड़ी कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ और बाकी लेबोरेटरीज़ और हैं, क्या हम भी इसमें सारथी बन सकते हैं क्या? जैसे ही सीनियर लोगों से डिस्कशन किया, उन्होंने कहा सर बिल्कुल नहीं, हमारा जो एक्ट है वो एक एक्ट बना हुआ है कि एक्ट के हिसाब से हमें तो टेक्निकल एजुकेशन के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। तो मैंने कहा एक बार एक्ट मेरे को दिखाओ तो सही, उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह से है। और निश्चित रूप से उसमें यही लिखा हुआ था, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि अपने को टेक्निकल टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है देश में। लेकिन मैंने पढ़ने के बाद उनको कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि समाज के अंदर बाकी जो लोग अपेक्षा करते हैं हमारे से, उम्मीदें करते हैं कि उनकी मदद नहीं करनी है, ये हमारे इस एक्ट में कहाँ पे लिखा हुआ है। उस दिन से अग्रवाल जी के साथ मिलके हमने, विशेष रूप से मेरे पास M.Tech के स्टूडेंट्स थे और हमारी इच्छा ये इसके अंदर थी कि क्या ये बच्चे भी सोसाइटी के लिए कुछ अपना अपना रोल महसूस कर सकते हैं क्या? क्या इनके दिल के अंदर भी ऐसी कोई चाहत हो सकती है क्या कि जो कमज़ोर है उसको मैं हाथ पकड़ के क्या आगे बढ़ा सकता हूँ? वहाँ पे जो शिक्षक हैं, क्या उनके मन में भी ऐसी भावनाएं आ सकती हैं क्या? वो तो सिर्फ सैलरी लेते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन समाज की जो अपेक्षाएं, क्या उसमें ये परिपूर्ण हो सकते हैं क्या? क्या आगे बढ़ा सकते हैं? तो हमने एक कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ करीब 40 कंप्यूटर की हमने वहाँ पे एक व्यवस्था सिर्फ सार्थक के लिए की। 40 कंप्यूटर उसके अंदर लगे, अच्छा सा इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर था, सेक्टर 26 के अंदर था, वैसे ही अच्छा, मतलब बहुत ही एक अट्रैक्ट करने वाला वो लोकेशन था। और उसके अंदर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब ये फैसिलिटी क्रिएट की, तो मैंने जितेंद्र जी से कहा कि हमारा इसके अंदर एक्सपर्टाइज नहीं है। जिस कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे अगर ट्रेनिंग लेने आएंगे, उसके लिए हमारे पास तो एक्सपर्टाइज नहीं है। तो इनकी मदद से हमने टेक महिंद्रा से टाई अप किया। टेक महिंद्रा कंपनी है कि जो बच्चों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करे, बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात करे, बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करे, बच्चों को कम्युनिकेट करने की एक एबिलिटी उनके अंदर डेवलप करे। तो हमने काम बांट लिए। हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, हमारे बच्चों को जो दिव्यांग बच्चे थे उनके साथ जोड़ना था। जितेंद्र जी का काम बच्चों को मोटिवेट करके उस संस्थान के अंदर लेके आना था। सबसे बड़ा चैलेंज जो है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अपने परिवारों में हाईली डिमोटिवेटेड रहते हैं। परिवार में शायद उसी की कदर होती है जो कमाई करता है, जो पैसे लेके आता है कुछ उसके अंदर। तो जहाँ पे दिव्यांगता की बात जब होती है तो उस बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं तो कुछ परिवार के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। और उनके लिए और कठिनाई का समय आ जाता है जब पेरेंट्स नहीं रहते इस धरती पे। पेरेंट्स के जाने के बाद उनका डिमोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है। तो जितेंद्र जी ने हमारे लिए सबसे बड़ा ये काम किया कि चंडीगढ़ के आसपास के, चाहे पंजाब का क्षेत्र हो, चाहे हरियाणा का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में ऐसे दिव्यांग बच्चे थे जो गाँव में थे, उनको जा के इनकी टीम मोटिवेट करती थी कि आइए आप कुछ कर सकते हैं, आप लोग सक्षम हैं। और आपने ये पाठ पढ़ाया कि मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से जो इन्होंने डिफाइन किया कि दिव्यांगता आज के दिन में वो है जो कोई हुनर नहीं रखता। जिसके पास हुनर है वो दिव्यांग नहीं है। ये मिथ आपने तोड़ा कि आपके हाथ में अगर हुनर होगा, आप अगर देश के डेवलपमेंट में भागीदार बनते हैं, परिवार के आगे बढ़ने में भागीदार बनते हैं, तो आप दिव्यांग नहीं है। और ऐसी भावना के साथ इन्होंने बच्चे हमारे वहाँ पे उस सेंटर में लाना शुरू किया। बच्चे करीब करीब हमारे पास 4 घंटे के लिए आते थे। और उसके अंदर जो कोर्सेज हमने शुरू किए टेक महिंद्रा की हेल्प से, कि बच्चों को एक तो थोड़ा सा कम्युनिकेट करना सिखाएं, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, कुछ IT स्किल्स उनको दे दें, और थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल, अच्छा सा व्यवहार अगर जो है वो कर पाएँ, ताकि उनके अंदर दिमाग में कॉन्फिडेंस हो, मेन धारा जैसे लगें। जैसे ही उनकी 4 साल में ट्रेनिंग पूरी होती थी, हम आसपास की बद्दी एरिया वगैरह बड़ा एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो हम उन लोगों को हमारे इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्रीज़ को बुला के लाते थे कि ये बच्चे आज हमारे तैयार हैं, क्या ये आपके काम के लायक हो सकते हैं, क्या ये नौकरी योग्य आपको लगते हैं क्या? तो हम कैंपस ड्राइव करते थे इस तरह से दिव्यांग बच्चों के लिए। और इंडस्ट्रीज़ को ये कहते थे कि आप कोई चैरिटी मत करना, और ये भी मत कह के जाना कि बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है, अगर कोई कमियां हो तो हमें बता के जाना, अगर काम का हो तो आप लेके जाना।
इस तरह से प्रयास करते कि आप डिमोटिवेट मत कर देना किसी बच्चे को, जो है आप कमियां बताना, वी आर रेस्पॉन्सिबल, वील डू दैट सॉर्ट ऑफ गैप फिलिंग, और आप जब भी अगली बार आओगे तो ये बच्चा आपको काम का मिलेगा। हमने करीब करीब 3 साल वहाँ पे काम किया साथ में, और जितेंद्र जी अगर मेरे को फिगर अगर ठीक से याद है तो करीब 750 बच्चे हमारे वहाँ से ट्रेनिंग लेके नौकरी लगे, अच्छी अच्छी नौकरी जो है वो लगे। और एक तो चंडीगढ़ के सेक्टर 9 या 8 में KFC है, जो पूरा KFC हमारे वो बच्चे चलाते थे, और सबसे ज़्यादा वो जो है अट्रैक्शन में था, सबसे ज़्यादा वो लोग वहाँ पे आते थे, वो कमाई भी सबसे ज़्यादा करते थे। तो इस तरह से करते करते हमारा एक बड़ा सा काम शुरू हो गया। 2013 के अंदर उस संस्थान को सम्मानीय राष्ट्रपति जी ने उस संस्थान को इस कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए सम्मानित किया। उस संस्थान को जो है एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पीपल, उसके लिए जो है सम्मान मिला। तो हमारे लिए तो एक बड़े गौरव की बात होगी, हमें एक्सेस मिल गई पूरे कंट्री के अंदर, हमें लोग जानने लगे। उसी के साथ हरियाणा सरकार के सेक्रेटरी जो उस टाइम एजुकेशन देख रहे थे, वो भी काफ़ी इस काम के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने गुड़गांव में एक सेंटर दे दिया। हमने जयपुर में बात की, वो जयपुर में सेंटर मिल गया। अब आप जितेंद्र जी आप कह रहे हैं कि आपके करीब करीब 30 सेंटर देश में काम कर रहे हैं। करीब आपने 30,000 बच्चों को, ऐसे बच्चों को आपने एक रास्ता दिखा दिया है, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। तो इससे बड़ा मेरे हिसाब से मानव सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। उनको कॉन्फिडेंस जगा के और देश की उन्नति के अंदर भागीदार बना दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। AICT का तो छोटा सा कंट्रीब्यूशन, और हमें तो एक मौका मिलता है सब साथियों से मिलने का। 12 महीने में एक प्रोग्राम होता है। उसी दौरान नीटर के अंदर हमने एक और एक्टिविटी कराई। आप लोग एक एक्टिविटी कराते हैं एबिलम्पिक्स के नाम से, एबिलिटी ओलंपिक्स। एबिलिटी ओलंपिक्स में दिव्यांग बच्चों के हाथ में जो स्किल्स है उनके कंपटीशन कराते हैं। तो वो कंपटीशन हमने नीट चंडीगढ़ के अंदर कराया, और जिसके अंदर 33 सेक्टर स्किल्स के करीब करीब 500 बच्चे आए। और 500 बच्चों को जिस तरह से हमने 5 दिन वहाँ पे रखा, हैंडल किया, और जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ उनका जुड़ना हुआ, जो दोस्ती बनी, वो अपने आप में अविस्मरणीय थी। आज भी क्षण वो मेरे हमेशा आंखों में रहते हैं कि किस तरह से एक जुड़ाव जो है, और बच्चे जो है हमें एक रास्ता दिखा के गए कि हम स्किल में कितना बड़ा काम करते हैं। वहाँ से शायद करीब 18 या 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जो फ्रांस में जो जिनका एबिलम्पिक्स हुआ था उसके अंदर वो बच्चे वहाँ से सेलेक्ट होके गए थे। तो पूरे विश्व में भी उन बच्चों ने नाम रोशन करना शुरू किया था। आज हम लोग जो टेक्निकल एजुकेशन, AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को देश में रेगुलेट करने का काम करती है। आज हमारे पास करीब 10,000 इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें मेनली इंजीनियरिंग के हैं, डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक्स बच्चे करते हैं उनके लिए है, फिर फार्मेसी का है, मैनेजमेंट का है, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, ये कोर्सेज हैं। और 10,000 इंस्टीट्यूशन में एक बड़ा जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है कि ये सारे संस्थान बैरियर फ्री होंगे। हम तभी मान्यता उनको देते हैं कि बच्चों के लिए मूवमेंट के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के मूवमेंट के लिए उनको फ्रीली जो है आप एक शिक्षा देने की, जिसके अंदर कोई ये इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा नहीं बने, वो हमने मैंडेटरी किया। कोई भी संस्थान देश के अंदर जो हमारे 10,000 हैं, वो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बच्चों के मूवमेंट के अंदर या लिफ्ट नहीं हो, यहाँ पे वहाँ पे जो है रैंप नहीं हो, ऐसा कोई संस्थान वहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरा, ऐसी हमारी 50 पॉलिटेक्निक्स हैं देश में, जिसमें हर पॉलिटेक्निक में 25 ऐसे दिव्यांग बच्चों को लेते हैं, और भारत सरकार पूरी उनकी शिक्षा का खर्चा जो है उठा रही है। हम लोग AICT की तरफ से सक्षम नाम से एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर बच्चों को हर साल 50,000 रुपये देते हैं। दिव्यांग बच्चों को उनका खाना पीना, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था जो है हमारे माध्यम से होती है। टीचर्स को विशेष रूप से ट्रेनिंग, आज दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अंदर मेन स्ट्रीम में लाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके मेंटर्स जो है, उस लेवल के मेंटर्स, उस लेवल के टीचर्स जो उस पीड़ा को समझे, जो उनको दिल से जो है अपने साथ जोड़े, उस तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं। और इसी तरह से असिस्टिव डिवाइसेज जो हो सकती है लेबोरेटरी में, आज इक्विटी की ज़रूरत है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। उसके हिसाब से अगर टीचर्स को अपन ओरिएंट कर दें और उस तरह की फैसिलिटी क्रिएट कर दें, तो बच्चे मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, और ये बड़ा सा काम देश के अंदर उसके अंदर कर सकते हैं। तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, उसी तरह से असिस्टिव डिवाइस उनके लिए स्पेशल करिकुलम, इवन एग्जामिनेशन सिस्टम भी उनका अलग से, उतनी एक्सपेक्टेशन हमने करना जो मेन स्ट्रीम का बच्चा है इट्स डिफ़िकल्ट, तो उसी हिसाब से करिकुलम हो, उसी के हिसाब से जो उनका एग्जामिनेशन का सिस्टम हो, और टीचर्स उनके साथ में कंसर्न हो। हर इंस्टीट्यूशन में हमने ऐसे बच्चों को मदद करने के लिए काउंसलिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे हमने जो है बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स रखने के लिए ग्रीवेंसेस वहाँ पे बता पाएँ, उनको फ़ोन कॉल
कर पाएँ। तो जितनी तरह की मदद हर संस्थान में हो सकती है बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, वो हम कर रहे हैं सार्थक के साथ मिलके। जो अब इनका ये ड्रीम है कि हम साधारण एजुकेशन, साधारण स्किलिंग नहीं देंगे, हम तो एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपका जो ड्रीम है और भगवान इनके ड्रीम को पूरा करे, हम लोग साथ में उसके अंदर भी किसी भी तरह की DPR की, किसी तरह की दिशा की, किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी तो AICTE आपके साथ में। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतने बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे आना जो है, इलेक्शन कमीशन का आना, सेक्रेटरी सोशल एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से आना, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है। और ये जो प्रयास जितेंद्र जी कर रहे हैं, इस प्रयास में हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूनिया जी, आपका ये सहयोग हमेशा से साथ रहा है। आपने हुनर की बात की और सार्थक ने हूर बनाए। सो हुनर से हूर तक की जर्नी हम लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं और चल रहे हैं, और इसी में सबका सहयोग हमें परस्पर मिलता जा रहा है और मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के एंड सेक्रेटरी जनरल नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको मैं बुलाऊंगा। Dr. Agrawal has been working for the last 14 years on empowering the persons with disability through early intervention, inclusive education, skill development, sustainable employment, advocacy generation, Olympics, NGO capacity building, accessible event management, and Divyangjan portal. In 2004, Dr. Agrawal lost his central vision due to macular degeneration and thus had to discontinue his practice. During his period, he realized dependency as the biggest trauma persons with disability faces. This turnaround in his life led to him to contribute towards the upliftment of PWDs by setting up Sarthak, which has a literal meaning doing something meaningful or significant. संयोग की बात है कि मैं भी सन 2008 से डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं नोकिया में हुआ करता था, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो मेरे पास आए थे। मैंने कहा नहीं, इवेंट नहीं करना है, सस्टेनेबल बनाना है। तब से हमने एक प्रोग्राम 5-7 साल नोकिया के साथ शुरू किया था और उसी का एक छोटा सा बीज बोया था जो आज औरों के सहयोग से आगे बढ़ चुका है। Sarthak, in the last 14 years of its existence, has successfully trained and placed more than 45,000 PWDs in various sectors like IT, ITS, hospitality, retail, manufacturing, and others through its 24 skill building centers across India with more than 2,000 corporate partners like Walmart, Flipkart, Infosys, Amazon, Lemon Tree, IIG, etc. Sarthak's various developments and landmark initiatives got recognized at many platforms such as Heller Keller Award, Mahatma Award, Special Mention Award by NSDC, Changemaker Award by GT Sabera, Exceptional Achievers Award by Government of Delhi, Best NGO Award by Punjab State Government, and so on. Recently, the work of Sarthak is well appreciated by megastar Amitabh Bachchan during his Kaun Banega Crorepati Season 12, which was a Karamveer special. Additionally, Dr. Agrawal is also governing board member of Sector Skill Council of Persons with Disability, member of National Fund for Persons with Disability, member of Selection Committee of National Action Plan for Persons with Disability, and member of the National Advisory Committee on Accessible Election. डॉक्टर साहब, आपका समय अब शुरू होता है। थैंक यू संदीप जी फॉर सच ए काइंड इंट्रोडक्शन। हमारे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, हम जोर से लिए उनको एक अभिवादन करके ताली बजा सकते हैं उनके लिए जोर से। आई थिंक पूनिया सर ने जैसे बताया, आज हमने थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा प्रिकॉशन लिया सर। आज बच्चों को और थोड़ा सर्दी भी था तो कम बच्चों को थोड़ा बुलाया हमने, बट मेरे को लगता है कि अभी ऑनलाइन का ज़माना जो कोविड से लोगों ने सीखा, तो करीब 8 से 10 हज़ार लोग ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं। और जो हमारे 24 राज्यों में जो सेंटर्स हैं वहाँ पे भी वो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, अलग अलग जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। आई थिंक कोविड से हम लोग सब सीखें। हमारे साथ श्री राजेश अग्रवाल जी हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, उनके लिए हम जोर से एक ताली बजा सकते हैं। जैसे पूनिया सर ने बताया कि 2011 से हम उनके साथ जुड़े और अब ईश्वर कृपा से वो काम बड़ा होता जा रहा है और उनका सहयोग हरदम जब भी उनसे मुलाकात होती है तो ही इज़ ऑलवेज इंस्पायर एंड मोटिवेट अस। हम पूनिया सर के लिए एक जोर से ताली बजा सकते हैं, जोर से। हमारे साथ आज कॉरपोरेट्स के लोग भी हैं जो कि बच्चों को रोज़गार देते हैं, इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी कॉरपोरेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हम जोर से ताली बजा सकते हैं।
हमारे साथ जो है एनजीओ पार्टनर्स, जैसे आइडिया का प्लेटफॉर्म हमने बनाया, 600 के करीब एनजीओज हैं जो पूरे देश भर से, उनके लिए हम एक ज़ोर से ताली बजा सकते हैं क्योंकि वो चेंज मेकर्स हैं हमारे इसके लिए। अभी सार्थक के माध्यम से हमने करीब 2 मिलियन 20 लाख लोगों को आउटरीच किया है। उनमें से काफ़ी लोग हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से कनेक्टेड होंगे, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक, तो हम उन सब दिव्यांग लोगों के लिए एक ज़ोर से ताली बजा सकते हैं। जैसे आज ये हमारा 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ईश्वर कृपा से हमारे जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर कलाम सर, उन्होंने इनोग्रेट किया था। और मेरे को अभी तक याद है जब उनको इनवाइट करने मैं गया, रात को समय मिले थे 9 बजे के करीब, और तो वो मैंने जब इनवाइट करा था तो ही वाज इनविटेशन के बारे में नहीं बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आपकी आँख कैसे ठीक हो जाए। और वो मेरे को हाथ पकड़ के करीब ही स्पेंट हाफ एन 45 मिनट्स विद मी कि बिकॉज साइंटिस्ट थे और वो ना बिल्कुल निष्कामता से जैसे काम करते थे, तो बहुत मोटिवेशन था। और वो उसी के बारे में उन्होंने कुछ डॉक्टर से भी बात किया उसी समय। तो वो मेरे को लगता है कि इस तरह के जो आत्माएं हैं, इस तरह के जो थे, आई थिंक ईश्वर जहाँ पे भी डॉक्टर कलाम सर होंगे, उनको हम सबका प्रणाम। और वो बहुत मोटिवेट किया उन्होंने फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो एक बेंचमार्क सेट किया इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें जिसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और आज हम लोग 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका जो थीम है ग्लोकल पार्टनरशिप, ग्लोबल और लोकल, तो इसका मिश्रण जो है सार्थक ने पिछले 14-15 वर्षों में किया दिव्यांगजन एम्पावरमेंट के लिए। अगर हम भारत की जनसंख्या के बारे में बात करें, जो 2011 का जो सेंसेक्स है वो बोलता है कि 2.68 करोड़ दिव्यांग लोग हैं हमारे देश में, बट WHO और वर्ल्ड बैंक के अनुसार करीब 10 करोड़ से कम ज़्यादा लोग हैं दिव्यांग हमारे देश में, क्योंकि पहले हम 7 डिसेबिलिटी एक्सेप्टेड थी, अब 21 डिसेबिलिटी होगी। तो नंबर बहुत बड़ा है और समस्या भी बहुत बड़ी है, जिसमें हम सबको मिलजुल के काम करना है। करीब 65% जो हमारे दिव्यांग लोग हैं वो गांव में रहते हैं और 35% शहरों में रहते हैं। और वुमेन और मेल और फीमेल का रेशो देखें वो भी 60-40 का है। तो समस्या बहुत चैलेंजिंग है। 2008 में जैसे संदीप जी ने बताया कि हम लोग एग्जिस्टेंस में आए, और इसका मकसद यही था कि कैसे हम लोग दिव्यांग लोगों को रोज़गार दें, क्योंकि लाइवलीहुड मिलता है तब डिसेबिलिटी भी चली जाती है, माइंडसेट, कम्युनिटी भी दूसरी तरह से देखने लग जाती है। जैसे पूनिया सर बता रहे थे कि चंडीगढ़ में जब ये मूवमेंट आया तो बदलाव आ गया, और परिवार में भी उस बच्चे की इज्जत होती है, कम्युनिटी भी दूसरी तरह से देखती है। तो सार्थक ने 2008 से 2 चीज़ों पे काम शुरू किया कि अपनी सर्विसेज स्टार्ट की और जो इस तरह के स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ पार्टनरशिप किया। तो सर्विसेज में हमने पूरे लाइफ साइकिल पे काम किया। जब बच्चा जन्म लेता है तो हमने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स खोले, जहाँ पे हम लोग बच्चों को हॉस्पिटल से ही आइडेंटिफाई करके उनकी डिसेबिलिटी को जो है मिनिमाइज करते हैं। जैसे कई सारी कंडीशन, लेजी आई होता है जिसमें एक आंख से नहीं दिखता, दूसरी लेजी होती है, तो अगर हम विजन स्टिमुलेशन करते हैं तो बच्चा देखने लग जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हम अर्ली इंटरवेंशन में करते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन में काम किया। स्किल एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें हम लोग 4 प्रकार की जो ट्रेनिंग देते हैं, जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, फिर डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग। तो इस तरह के विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ट्रेनिंग, तो 4 प्रकार के हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें उनको 3 महीने का ट्रेनिंग मिलता है, 1-1.5 महीने उनका बेसिक ट्रेनिंग, फिर सेक्टोरल ट्रेनिंग, और फिर ऑन। तो जो 3 महीने का ट्रेनिंग में मैंने जो अभी तक एलुमिनाई से बात किया, उसमें उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सबसे बड़ा एक प्राइम इम्प्रूवमेंट आता है, जिससे क्योंकि वो घर बैठता है, उसके उस एनवायरनमेंट में जब दिव्यांग बच्चों से बात करता है तो बड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये एक जो जीत प्रोग्राम था, इसके माध्यम से जब हमने प्लेसमेंट हुए बच्चों के, तो कॉरपोरेट्स का भी ये मानना था कि अब रिटेंशन नंबर बढ़ रहा है और जो है बच्चे सस्टेन कर रहे हैं नौकरियों को। तो ये एक सार्थक का फ्लैगशिप प्रोग्राम स्किल का हम लोग चलाते हैं। उसी तरह से एक एबिलम्पिक्स प्रोग्राम है जो कि जैसे स्किल कॉम्पिटिशन्स नेशनल और इंटरनेशनल हम लोग कंडक्ट करते हैं। पहला इंटरनेशनल एबिलम्पिक इवेंट इंडिया ने 2003 में होस्ट किया था, जब लेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने और डॉक्टर कलाम सर ने इनोग्रेट किया था उसको। तो उसके बाद ये अब हम लोग इस साल नेक्स्ट ईयर मार्च में 2023 में हम लोग फ्रांस, हमारे जो 14 दिव्यांग बच्चे हैं अलग अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रांस में ट्रैवल कर रहे हैं। और एक मैंने आइडिया का प्लेटफॉर्म बताया। कुछ हमने कोविड के दौरान डिजिटल सॉल्यूशंस भी निकाले कि एक कैब सारथी मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से देश भर की जितनी सरकारी, गैर सरकारी और संस्थाएं, उनके बारे में डिटेल्स, कहाँ से बच्चे का पेंशन, कहाँ से कंसेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी है। और करीब
उस पे 25 से 30 हज़ार लोग अभी रजिस्टर्ड हैं और अपनी सर्विसेज ले पा रहे हैं। उसी तरह से एक रोज़गार सारथी हमारा एक जो पोर्टल है एक्सेसिबल, जिस पे सरकारी और गैर सरकारी सब नौकरियां होती हैं और बच्चे अप्लाई करके पा लेते हैं। और एक जैसे लव वर्मा सर ने ग्लोबल रिसोर्स सेंटर के बारे में बताया, जो कि हमने 6-7 साल पहले सोचा था। उसका मकसद था कि हम आइडिया की जो NGOs हैं उनको रूरल ज्योग्राफी से लाके उनको स्किल करें, ताकि वो भी सार्थक की तरह से ट्रेनिंग कर सके। तो जो एक सार्थक है, ऐसे करीब 500 सार्थक बन जाएं और उसी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। पार्टनरशिप की बात करें तो हमने जो है सरकार के साथ काफ़ी पार्टनरशिप किया, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के साथ मिलके 2016 में नया जो बिल आया PWD 2016, उसके बाद फिर हमने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, और उसके बाद में फिर जो है कई सारे ऐसे चीज़ें जो हमने सरकार के साथ मिलके की और अभी कर रहे हैं। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन इलेक्शन कमीशन कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। बहुत जो है ना, बहुत तारीफ़े काबिल है। अगर विश्व में भी देखें तो इस तरह की सुविधाएं जो इलेक्शन कमीशन हमारे देश के दिव्यांगजनों को दे रहा है वो नहीं दे पा रहे, बट हमारे देश में मिलती हैं। जो लोग घर पे बैठ के जा नहीं सकते बूथ पे, उनको घर से जो है बैलेट के माध्यम से वो वोटिंग कर सकते हैं, उनको व्हीकल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं इलेक्शन कमीशन हम अभी जो दिव्यांगजनों को दे रहे हैं, उनके लिए हम एक जोर से ताली बजा सकते हैं, जोर से क्योंकि इस तरह की सुविधाएं विश्व में भी नहीं है जो हमारे देश में इलेक्शन कमीशन दे रहा है। और आई थिंक सर, थैंक यू सो मच। और अभी जैसे मैं भी एक उस कमेटी का हिस्सा हूं, तो 85 लाख अभी दिव्यांग लोग अभी हमारे इलेक्टोरल का जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक टारगेट है कि 1 करोड़ लोग इस बार 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन हो तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि जितने ज़्यादा दिव्यांग लोग अगर उस इलेक्शन का उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी अपना एक, उनका भी एक राइट है, उनका भी एक वो है, और वो इसका हिस्सा बनेंगे। कॉरपोरेट्स का मैं जैसे मेंशन किया कि हम 2008 में जब शुरू किए थे तो एक भी कंपनी बच्चों को हायर करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अवेयर नहीं थे। वो पूछते थे कि लोग क्या खाएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर हाउ टू हायर एंड वेयर टू हायर। और ईश्वर कृपा से अब हम आज देखें तो 2022 में 2000 से ज़्यादा कंपनियां इन बच्चों को हायर कर रही हैं। डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। पहले डिमांड नहीं था, अब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई के लिए हम लोग बहुत सारे लोगों से पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो कॉरपोरेट्स जो इस तरह से आगे आए और उन्होंने उनकी जो काबिलियत को समझा, और इसमें जो हमारा डे 1 से ही कॉन्सेप्ट था कि ये चैरिटी बेस्ड हायरिंग नहीं होगा। इट्स नॉट ए चैरिटी कि एक डिसेबल्ड व्यक्ति को हायर करना है, ये बिजनेस मॉडल था। और अब उनको भी समझ में आ गया कि उनको फ़ायदा है इस सौदे में, इससे उनको कोई नुकसान नहीं है। इट्स विन विन फॉर बोथ द पार्टीज। तो ये एक जो एक्सेप्टेंस आया कॉरपोरेट्स के दिमाग में कि हायरिंग ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इज ए बिजनेस मॉडल, नॉट ए चैरिटी, ये एक बहुत बड़ा पायनियरिंग कॉन्सेप्ट था जो सार्थक के माध्यम से कंपनियों ने समझा। और अब इसको ईश्वर कृपा से आगे लेके जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और उनको भी बिजनेस मिल रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च भी करवाया कि भाई हायरिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से कॉरपोरेट को क्या फ़ायदा है। तो उनको ये फ़ायदा लगा कि वहाँ बिजनेस मिलने लगा उनको। कस्टमर सोचता है कि अगर एक दिव्यांग बच्चा किसी कैफ़े में काम कर रहा है तो आई शुड विजिट दैट कैफ़े, और ये बड़ा फेमस अभी हमारे देश में हो गया है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह से और कैफ़े खुलें और हमारे और दिव्यांग बच्चों को नौकरियाँ मिलती चली जाएँ। आइडिया का मैंने आपको जिक्र किया कि ये करीब 600 संस्थाएं अब रजिस्टर हो गई हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब पूरे देश भर की संस्थाएं हैं, और जो कि जिनका हम लोग स्किल डेवलपमेंट, जिनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, और कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह से 500 सार्थक, 1000 सार्थक बन जाए, ताकि जो है देश भर में जो एम्पावरमेंट का काम इसी तेज़ गति से चलता चला जाए। इंटरनेशनली क्योंकि ये ग्लोबल है तो एक उसी सीरीज़ में मैंने बताया कि ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं, और ऐसे ही हमने इंटरनेशनल पार्टनरशिप किया करीब नॉन प्रॉफिट 100 संस्थाओं के साथ, यूके, यूएस, कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको हमने इम्बाइब किया अपने सार्थक में, और हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको भी बताया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम ही सब सीखते हैं, उन्होंने भी हमसे सीखा कि कैसे इस तरह की स्किलिंग करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो ये एक इंक्लूजन था कि सब मिलजुल के अगर हम काम करेंगे तो उस काम को हम आगे लेके जाएंगे। तो पिछले जो है पिछले 15 वर्षों में जो करीब 50,000 से ज़्यादा दिव्यांग लोगों का एम्पावरमेंट हुआ, अलग अलग ऐप्स में बच्चों का हुआ, और हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम 1 लाख दिव्यांग लोगों को रोज़गार देंगे।
और जो ग्लोबल रिसोर्स सेंटर हमारा नेक्स्ट ईयर तक लाइव हो जाएगा, जिसके माध्यम से जैसे लव वर्मा सर ने बताया डायलॉग इन द डार्क, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट, और एक हम उसमें इंक्यूबेटर बना रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में टेक्नोलॉजी के जो हमारे बच्चे हैं आईआईटी के बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाते बट मार्केट नहीं लेके जा पाता, तो हम उसको उसके बीच में ब्रिज बनेगा ये जीआरसी, जहाँ पे उसमें एक डेडिकेटेड एक फ्लोर है जो कि टेक्नोलॉजी को अलग अलग दिव्यांगता पे टेस्ट करके पीपल विद ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, और मार्केट को एक्सपोज करेगा कि ये टेक्नोलॉजी को वो लोग अडोप्ट कर सकते हैं ताकि वो मार्केट में सस्ते दामों पे हमारे गांव के दिव्यांग के लिए मिल पाए। तो ये उस जीआरसी का मकसद रहेगा। और एक हम लोग जो अभी पिछले 3-4 महीनों में ही प्लान किया कि एक यूनिवर्सिटी बनाए। देखिए, इस सेक्टर का सबसे बड़ा स्ट्रगल ह्यूमन रिसोर्स है। इवन हम सार्थक में भी फेस करते हैं कि हमारे यहाँ जो हम लोग ट्रेनर्स हायर करते हैं, कॉरपोरेट से लोग आते हैं, वो सोशली इंक्लाइंड नहीं रहते। वो उनको अच्छा है, वो भी अच्छे ह्यूमन बीइंग है, बट उनको डिसेबिलिटी के बारे में कैसे डील करना है वो चैलेंजेस हैं। और अक्रॉस द प्रोग्राम देखें, अर्ली इंटरवेंशन से लेकर रिहेबिलिटेशन तक हमारे पास बहुत कम मैन पावर है। ऑफ कोर्स हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट वो वहाँ बच्चे ट्रेन करते हैं, बट फिर बहुत उसमें गैप है। तो उस सब को फिल करने के लिए हम लोग एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक सपना देखा है। तो मेरे को लगता है जैसे पूनिया सर ने बताया कि वो ईश्वर कृपा से ज़रूर पूरा होगा। और उसी सीरीज़ में जब हम इस बारे में चीफ इलेक्शन कमीशन सर से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप कुछ कोर्सेज शुरू कीजिए। तो हम कुछ 2 कोर्सेज अभी उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से एसजीटी के साथ प्लान कर रहे हैं कि हम जैसे एक हमने कोर्स सोचा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, बिकॉज हमें मैनेजर्स चाहिए जो कि इन पूरे प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर सकें और उस अच्छी भाव से और अच्छे ट्रेनिंग के द्वारा। तो हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि आने वाले वर्षों में हम लोग ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जो सपना है वो पूरा हो। और मेरा मैसेज जो है हर दिव्यांग को यही रहेगा कि आप देख रहे हैं कि अब सक्सेस स्टोरीज़ कितने सारे जो बच्चे दिव्यांग बच्चे जो काम कर रहे हैं, तो आई थिंक जो गांव में पेरेंट्स हैं, अब आपको उनको जो है उस एनवायरनमेंट में लेके आना है। आई थिंक उनके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको उनको एक एक्सपोज करना है, उनको एक सपना दिखाना है, उनको सिस्टम में लेके आना है, वो कुछ भी कर सकेंगे। एंड स्पेशली टू द पेरेंट्स, आपने खुद देखिए इन सक्सेस स्टोरीज़ को कि वो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मेरा निवेदन सभी पेरेंट्स से और दिव्यांगजनों से रहेगा कि जो एम्पावर हो चुके सार्थक के माध्यम से उसको स्प्रेड कीजिए, उस मैसेज को हर दिव्यांगजन तक, हर गांव तक पहुंचाइए। और पेरेंट्स को आप अपने माध्यम से हर पेरेंट को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब एल्यूमिनाई बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप जब बोलते हैं कि ये जो है अब मैं इस संसार को छोड़ के जा सकता हूँ आसानी से, क्योंकि अब ये कमाने लग गया है, और वो एक मोमेंट होता है, मतलब सेटिस्फेक्शन का मोमेंट होता है, और लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आए और सार्थक के साथ इस काम में जुड़े। और मेरे को लगता है कि ईश्वर कृपा से ये चीज़ आगे धीरे धीरे करके और आपके सहयोग से आगे चलती चली जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I would request technical team to play सार्थक्स वीडियो। सर, हमारा एक छोटा सा 2-3 मिनट का सार्थक का वीडियो है जिसमें सब सर्विसेज के बारे में जानकारी मिलती है। हमारी आंखें, इन आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, अपने सपनों को देखते हैं। क्या हो जब ये आंखें ही ना हो, हमारे देखने की शक्ति हमसे छिन जाएगी? जी नहीं, सपने सिर्फ आंखों में ही नहीं, हमारी हिम्मत और हमारी चाहत में भी होते हैं। और जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। सेक्टर के जो भी महान लोग थे जो दिव्यांग फील्ड में काम कर रहे थे, जब मैं उनसे मिला, बातचीत किया,
तो उनके भी यही रिमार्क्स थे कि ब्लाइंड आदमी कुछ नहीं कर सकता और आप बैठ जाइए घर पे या अपना कुछ एक कोई एफडी करवा लीजिए पिताजी से और अपना जीवन जी लीजिए। तो इस तरह के जो रिमार्क्स थे वो किक का काम किए और जब समाज ने उल्टा कर दिया आपको एंड देन यू टोल्ड कि नाउ लेट्स सी कि अब ब्लाइंड लोग क्या कर सकते, तो वो सर मोटिवेशन का काम है। We have to create such awareness inside our community about people with disability that they don't need sympathy, they need skill, they need empowerment, they need education. So we have to work on all those principles and create awareness among society. I think these awareness can create, I think, in a bigger way empowerment of people with disability. जितने भी हमारे बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट कैपिटल्स हमने कवर किए और जो 2008 में एक भी कॉरपोरेट नहीं था वो अब 1000+ पे चले गए और सेक्टर्स बढ़ गए, जैसे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी से बढ़ के मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ। आई थिंक सब सेक्टर्स में इन बच्चों का रोजगार मिला। तो आपको ये सारी चीज़ें जज करनी है। Now people from smaller NGOs, people from the rural part of India, it's my humble request to them to spread this information all across India where they can share with people with disability. We are ready to train people with the NGOs, smaller NGOs, so maybe 1000 or 100 Sarthaks can be created independently in different part of India, because we have to empower rural part of India. So I am very optimistic person. I always feel nothing is impossible in this world, and if we think, if we are getting any signal, so that signal is not from us, from the God, and I feel fortunate that God has chosen me for this empowerment. And my, you can say, body is nothing, it's an instrument. My Guru says it's an instrument, and till my last breath I have to serve people with disability. So parents, stakeholders and NGOs need to support Sarthak in enrolling these differently able for their training and eventual placement for jobs. In their spirit of innovation, Sarthak is now building an SGRC, a global research center in Gurugram, and needs the generous support for its fructification. My very best wishes to the entire Sarthak team in the fulfillment of its mission. Thank you so much. Namaskar. थैंक यू निष्ठा, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल, आपने अपनी जर्नी बताई, बहुत ही अच्छी रही और दृढ़तापूर्ण आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ और लोग जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। इसके साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राजेश अग्रवाल जी को, जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में एक ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर अफसर हैं। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में IIT दिल्ली करने के बाद इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा 1979 मतलब 1989 में ज्वाइन किया और उसके बाद काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे काम किया, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में 4 साल 2003 से 7 में, महाराष्ट्र में प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT रहे 3 साल 8 महीने करीबन 2015 तक, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज रहे जनवरी से जून 2016 करीब 1.5 साल, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में भी रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी। तो काफ़ी कुछ ओहदे इन्होंने संभाले हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है और संयोग ये है कि इनकी काफ़ी पोजीशंस में सार्थक का साथ रहा। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं
कि अपना विचार उजागर करें। थैंक यू सर। आदरणीय सीएसी साहब, हमारे दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के पुराने सचिव लव वर्मा जी, मेरे पुराने मित्र पूनिया जी, सार्थक की पूरी टीम और दोस्तों, मैं 3-4 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगा। लास्ट वीक मैं एलिम्को कानपुर में गया। एलिम्को हमारी फैक्ट्री है जो व्हील चेयर्स और हियरिंग एड्स और ये सब चीज़ें बनाती है। तो वहाँ पे रिसेप्शन पे एक युवती है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, यहाँ से नहीं है, शोल्डर से नहीं है, शी हैज़ नो आर्म्स, एक लेग आदि नहीं है। तो व्हील चेयर पर वो बैठती है, जो एक टांगपुरी है उससे एक जॉयस्टिक ऑपरेट करती है, एंड शी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट। 2 साल पहले उसने अपने सुपरवाइज़र से बोला, वहाँ पे मैनेजर से, कि मैं फ़ौजी की बेटी हूँ, घर पे गार्डन्स हैं, मुझे यहाँ पे लैंडस्केपिंग अच्छी नहीं है फैक्ट्री में, मुझे आप उसका काम दे दीजिए, उसका इंचार्ज बना दो। तो उसका इंचार्ज बनाया। 2 साल में उसने पूरा लैंडस्केपिंग चेंज कर दिया। तो सो शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड चीयरफुल एम्प्लॉयज़। तो जब मैं उससे मिला, उससे गप्पे मारी, तो उसके मैंने पूछा, तो अपने कैन वी गिव यू आर्म्स, आर्टिफिशियल आर्म्स, प्रोस्थेटिक आर्म्स, हम मायो इलेक्ट्रिक आर्म्स जो शोल्डर मसल से आप ऑपरेट कर सकते हो। शी सेड, सर पर अपनी लिमिट तो 20,000 की है, आप कैसे दोगे? तो मैंने कहा, यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, क्यों नहीं देंगे? तो जो अभी अकोमोडेशन की बात हो रही थी, कंपनीज हैव टू अकोमोडेट देयर एम्प्लॉयज़, सो वी हैव टू मेक देम रिस्पॉन्ड टू द बेस्ट पोटेंशियल इन देयर कैरियर्स। अभी कल ही हमारा मिशन कर्मयोगी जो CBC मिशन बनाया प्रधानमंत्री जी ने, उनके साथ बातचीत हो रही थी कि हम अपनी डिपार्टमेंट में क्या क्या ट्रेनिंग देंगे। तो मैंने कहा, उस बच्ची को हम रिसेप्शन की ट्रेनिंग नहीं देंगे, क्योंकि वो बच्ची अभी एक्चुअली, जब मैं उससे बातें कर रहा था कि क्या हॉबीज़ हैं, तो शी सेड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। शी सेड तब मैं एक प्रोस्थेटिक लेग लगा लेती हूँ, और उसके फ्रैंकली यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो बहुत लोग देखते हैं, शी इज़ ए पॉपुलर ब्लॉगर। जब मैं कर्मयोगी मिशन से बात कर रहा था, इस बच्ची की ट्रेनिंग हम रिसेप्शन पे थोड़ी देंगे, उसको हमें फिल्म सिटी में भेजना पड़ा, वहाँ भेज के उसको विल मेक हर ए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, शी कैन एक्ट एज एम्बेसडर ऑफ आवर डिपार्टमेंट। तो इसी तरह से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हर कंपनी से, जब आप किसी को भी लेते हैं, तो क्या जॉब रोल में नौकरी दी है, उसके बियॉन्ड देखिए, उसका पोटेंशियल क्या है उसको देखिए। तो ऐसे में कई लोगों से मिलता रहता हूँ। तो अभी हमने 3 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने नेशनल अवार्ड्स दिए जो दिव्यांगजन है और इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हमारा सबसे छोटा विनर था 8 साल का एक बच्चा, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। तो जब वो 4 महीने का था, रेलवे स्टेशन पे उसके माँ बाप छोड़ गए थे। तो सोनीपत के एक 26 साल के युवक को लगा कि इसको मैं घर पे ले जाऊं। जब वो लेके गया, तब उसको पता चला सिंगल पेरेंट अडॉप्शन की तो उम्र ही 30 साल है इंडिया में। तो देन ही फॉट ए बैटल विद गवर्नमेंट, एंड उसके कारण, बच्चे के कारण, उसके अडॉप्टेड फादर के कारण देश का कानून बदला गया। और अभी वो 8 साल का बच्चा अभी एवरेस्ट बेस कैंप चढ़ के आया है और टाइगर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। उसको पता ही नहीं कि टाइगर से डरते हैं, और टाइगर को भी पता है ये डिफरेंटली एबल्ड है, कि ये डरता नहीं है बच्चा। टाइगर भी उसकी कमांड सुन रहे हैं। अभी अगले महीने वो थाईलैंड जाने वाला है टाइगर ट्रेनिंग की और अच्छी ट्रेनिंग लेने। इसी तरह से मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्लाइंड प्रोफेसर्स को मिला, इंग्लिश के, फ़िलासफ़ी के। तो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपका नज़रिया बदल जाता है। तो अभी भी कहा गया कि डिसेबल्ड लोग हम बोलते हैं, उनको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दे आर नॉट, जो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि विकलांग को उन्होंने एक शब्द दिया, दिव्यांग। तो जब आप मिलते हो तब पता चलता है कि इफ़ गॉड टेक्स अवे वन सेंस, God gives them a stronger mind, stronger willpower, more creativity sometimes. तो हर दिव्यांग में एक दिव्य शक्ति होती है। तो अपने को एज कॉर्पोरेट, एज एम्प्लॉयर, एज सोसाइटी उस चीज़ को पहचानना चाहिए और उनको उस टाइप का काम दें जो वो और अच्छे से कर सकें। इससे पहले मैं स्किल्स में था, ITS का काम भी देखता था, शॉर्ट टर्म स्किलिंग भी देखता था। तो उस सेक्टर में अभी कॉर्पोरेट सेक्टर का फंडिंग बहुत अच्छे तरीके से आने लग गया है। रफ़ाइल ने एक फैक्ट्री ITI नागपुर में सेटअप किया 5 करोड़ खर्चा करके। मारुति ने कम से कम 100 स्किलिंग सेंटर में ITIs में अपने सेंटर दिए हैं।
टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने कम से कम 3,000 करोड़ खर्च किया है हमारे ITIs को देश में अलग अलग भागों में और अच्छा करने के लिए। पर हमारे जो स्किल सेंटर्स हैं, चाहे सरकार के द्वारा संचालित हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर, जैसे सार्थक की बात हुई, उसमें अभी भी कॉरपोरेट फंडिंग बहुत कम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉरपोरेट फंडिंग इसमें भी और अच्छे से लाने की ज़रूरत है। और इसमें हमने भी पिछले हफ्ते एक निर्णय लिया है कि जैसे हमारा भुवनेश्वर में एक स्किल की बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें हमने निर्णय लिया है, और ये सजेशन सार्थक से आया था। सार्थक वाले ने मुझे बोला कि आप जो अपने इंस्टीट्यूट्स में स्किल सेंटर चला रहे हो, आप हमें दे दो, आपका पूरा खर्चा भी बचेगा टैक्स पेयर का, और हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम कहीं से भी पैसा लाएं, डोनेशन से लाएं, CSR से लाएं, कहीं से भी लाएं, पोटेंशियल एम्प्लॉयर से लाएं, हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और नौकरी देंगे। तो पिछले हफ्ते ही मैंने और मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि हमारे सेंटर्स में जितनी जगहें हैं, हम वो PPP पे ऑफ़र करेंगे ऐसी NGOs को, सेवाभावी संस्थाओं को, CSR को, कि आप आइए हमारी जगह पे ट्रेनिंग चलाइए। अभी ये भी बताया गया कि जो मैच मेकिंग है, कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, स्किल्ड हैं, और उनके लिए नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, नौकरियां ज़्यादा हैं, नौकरी पाने वाले, लेने वाले कम हैं, फिर भी नौकरी क्यों नहीं मिल रही? एक मैच मेकिंग का एसिमेट्री है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगले महीने के एंड तक हमारा जो 85 लाख का UDID का डेटा है, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड्स का, तो ये इसको मैं एनोनिमाइज़ करके विलेज वाइज डेटा, कि किस गांव में किस उम्र के, किस डिसेबिलिटी के, कौन से मेल फीमेल्स कितने हैं, वो डेटा हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, रिसर्चर्स के लिए डाल देंगे। और दूसरा, स्किलिंग के हमारे जो सिस्टम से हो रहे हैं, हम उसको एग्रीगेटर्स हैं, जैसे सार्थक एग्रीगेटर है, इनका रोज़गार सारथी का पोर्टल है, यूथ फॉर जॉब्स का स्वराजेबिलिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप में आइडिया का है, लीडर का है, सेक्टर स्किल काउंसिल का है, उधर से लेबर डिपार्टमेंट का अपना NCS पोर्टल है, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। तो हम API के द्वारा बच्चे भी अपना कंसेंट बेस पे उनका डेटा इन सभी को उपलब्ध हो जाए, और ये सब अलग अलग प्रकार के जो एग्रीगेटर्स हैं वो भी बच्चे को SMS, WhatsApp, ईमेल भेज पाएँ कि ये नौकरियां हैं, आप ऐसे अप्लाई करिए। हम डेटा पूरा भी भेज देंगे जो कंसेंट बेस्ड डेटा भेज सकते हैं। तो आई बिलीव कि इससे काफ़ी मदद मिलेगी, और हमारी टीम इस पर ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है। तो सो दे आर अप्रोचिंग वन बाय वन, दे विल अप्रोच सार्थक ऑल्सो। इसमें IIT हैदराबाद भी हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट करने के लिए आगे आया है। तो इस तरह से जैसे सार्थक की टीम जुड़ रही है एक एक करके, हमारे साथ भी एक एक करके डिपार्टमेंट के साथ कई अच्छे लोग आगे आ रहे हैं। दूसरा एक मॉडल होता है RTD, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, कि जहाँ कंपनियाँ रिक्रूट कर लेती हैं पहले, फिर वो कहती हैं चलो इन बच्चों को ट्रेनिंग उस हिसाब से दे दें। तो अगर कोई ऐसा मॉडल है, जैसे टीम लीज के मनीष सब्रवाल हैं और ऐसी कई कंपनीज हैं जो RTD मॉडल में हैं देश में, उनके साथ हम मिलके ट्रेनिंग कंपोनेंट में, और जैसे पहले बात हुई कि बेस्ट पोटेंशियल के लिए जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, उसमें हमारा विभाग बिल्कुल साथ मिलकर काम करना चाहेगा। अभी 2 दिन पहले ही हम इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मिले, और बहुत कम लोगों को पता होगा कि पिछले हफ्ते जो इंडिया में ही T20 वर्ल्ड कप हुआ ब्लाइंड के लिए, और इंडियन टीम ने वो जीता, और 5वीं बार जीता लगातार पिछले 10 साल में। तो उसमें से एक बच्चा 5 वर्ल्ड कप में खेला और जीता है, इंडिया के लिए गोल्ड कप लाया है, वो भी अनएम्प्लॉयड है। तो हम स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी हम अपने CSR से अपनी कंपनी में ज़रूर रखें। अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज रख रही हैं, उनके लिए कोटा वगैरह है इसलिए रख रही हैं। उसमें से आधी क्रिकेट टीम हमारी SBI में और बाकी जगह अच्छे पोस्ट में, कोई मैनेजर है, कोई डिप्टी मैनेजर है। और प्राइवेट सेक्टर इस तरह से अभी डिसेबल्ड की स्पोर्ट्स को, चाहे व्हील चेयर पे हो, चाहे ब्लाइंड हो, चाहे डेफ हो, अभी नौकरी देने के लिए सामने नहीं आया। टूर्नामेंट को स्पॉन्सरशिप हो रही है, पर मेरी गुजारिश है सभी कंपनियों से कि उस पर भी आगे आएँ। एक छोटी सी बात हमारे पिछले पैनल में थी, जीवन साथी वगैरह भी थी। आज मुद्दा वो नहीं है, पर दिस इज़ अ बिग इशू।
सेक्स एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड इज़ एक्चुअली ए टैबू टॉपिक इन अवर कंट्री एंड जीवन साथी ढूंढने के लिए भी बहुत समस्याएं हैं। इसमें कई अच्छे ग्रुप्स हैं जो मैच मेकिंग करते हैं और सामूहिक ऐसे एक एक मंडप में 100 लोगों युवक युवतियों की शादी भी कराते हैं, पर देयर इज़ ए प्रॉब्लम देयर ऑल्सो ऑफ मैच मेकिंग। तो आई होप कि सम कंपनीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। फिर जो CSR ग्लोबल पार्टनरशिप्स चाहिए, अपनी स्किल्स की बात हुई उसमें चाहिए। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि स्किलिंग करके हमारे डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड यूथ हैं, वो अपना घर पे बैठ के ही कुछ क्रिएटिव काम करना चाहेंगे। और कोविड ने तो हमें ये भी सिखा दिया कि घर बैठ के आप BPO का काम भी कर सकते हो, प्रोग्रामिंग का काम भी कर सकते हो, और बहुत सारे काम कर सकते हो। तो कंपनियों की पॉलिसीज़ ऐसी चेंज हों कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए आप फ्लेक्सिबल आवर्स दीजिए, घर पे काम बैठ के काम हो सकता है वो दीजिए। जो कंपनियां प्रोडक्शन में हैं, आप थोड़ा ऐसे जो घर पे बैठ के प्रोडक्शन कर सकता है वो चीज़ उसको दे सकते हो कि कॉटेज इंडस्ट्री में। और आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेंटरशिप की भी ज़रूरत है। क्या हम अगले 6-7 महीने में ऐसे 1000 मेंटर्स ला सकते हैं कि जो 10,000 पोटेंशियल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड या एंटरप्रेन्योरशिप वाले यूथ हैं उनकी मेंटरिंग करें। हफ्ते में 1 घंटा उनको फ़ोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे गाइड कर दें कि कैसे रॉ मटेरियल लेने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। इसमें ISB की एक कुछ प्रोफेसर हमारे साथ जोड़ने को तैयार हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो जैसे ISB कह रहे हैं, मैं अपने एल्यूमनाई से आपको जोड़ूंगा। एल्यूमनाई को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने 10 घंटे दे सकते हो क्या, 100 घंटे दे सकते हो क्या साल में। अभी NCERT ने एक प्रशस्त ऐप लॉन्च किया है, तो हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। तो बहुत बच्चे निकलेंगे जिनको मेडिकल इंटरवेंशंस चाहिए, तो वहाँ पे हमें CSR फंड चाहिए होगा। बहुत बच्चों को स्पेक्स चाहिए होंगे, चश्मा चाहिए होगा, व्हील चेयर चाहिए होगी, हियरिंग एड्स चाहिए होंगे। अभी ब्रेल बुक्स में हमने पिछले हफ्ते निर्णय लिया है कि अभी तक हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स देते थे ब्रेल की, अब हम बच्चों को कहानियों की किताबें हैं वो भी अपना ब्रेल में देना चालू करेंगे। IIT दिल्ली ने टैक्टाइल एक चालू किया है कि आप एम्बॉसिंग होती है कागज़ पे, आप हाथ फेर के भारत का नक्शा देख सकते हो, फील करके शेर कैसा होता है, हाथी कैसा होता है, ये फील कर सकते हो। उसको आप ज़िंदगी में कभी छुओगे तो नहीं, सांप कैसा होता है आप फील करके देख सकते हो। आप फील करके प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट साहब कैसे दिखते हैं, उनकी फ़ोटो को फील करके आप एम्बॉस्ड फ़ोटो हो वो फील कर सकते हो। रेड फोर्ट कैसा है वो फील कर सकते हो। तो हमने ये भी निर्णय लिया कि किताबों में कुछ पेजेस हम टैक्टाइल पेजेस भी देना चालू करेंगे। तो इसलिए जो भी चाहिए होगा हमें आगे आके उसमें आना चाहिए। अभी मैं लास्ट वीक उदयपुर गया था नारायण सेवा संस्थान में। देश के सैकड़ों बच्चे वहाँ पे आते हैं हर रोज़। बहुत सारे बच्चों को क्लब फुट होता है कि पैर टेढ़ा है, एक पैर या दोनों पैर। सो ऑल्टरनेटिव इज़ कि या तो 6-8 महीने की उम्र में हम बिना ऑपरेशन के डॉक्टर पैर ट्विस्ट करते हैं, प्लास्टर में कास्ट करते हैं, 2 महीने में बच्चा नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। ऑल्टरनेटिव इज़ कि अपने हाथों पैरों पे चारों पे क्रॉल करेगा, व्हील चेयर पर पहुँच जाएगा, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव। ऐसे हज़ारों या दसों हज़ारों बच्चे हैं जिनका अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ड्रॉप रिस्ट है या थोड़ा पोलियो पेशेंट्स भी हैं। अभी पोलियो पिछले 10 साल में तो नहीं है, पुराने पेशेंट्स जो हैं, पुराने अब युवक बन चुके हैं, उनका भी काफ़ी छोटा सा सर्जिकल इलाज होके आधे घंटे का, दे कैन ऑलमोस्ट बिकम नॉर्मल विद ए बिट ऑफ ऑर्थोटिक हेल्प। तो इस तरह की मेडिकल इंटरवेंशंस, अर्ली मेडिकल इंटरवेंशंस, इसमें हमारा कॉरपोरेट सेक्टर और सेवाभावी संस्थाएं और आगे आनी चाहिए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे विभाग में पैसे की कमी नहीं है, पर कई बार हम जो काम करना चाहते हैं उसमें हमारे प्रोसीजर्स आड़े आ जाते हैं। तो उसमें मैं थोड़ी सी CSR हेल्प मांगना चाहूँगा कि जैसे 3D प्रोस्थेटिक्स हैं, इसमें नई इंटरवेंशंस हो रही हैं, अच्छे अच्छे नी जॉइंट्स हैं, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशंस हैं, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए अच्छे सोल्यूशंस हैं। तो उसमें मैं चाहूँगा कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे साथ आए, उसमें हम आगे बढ़ें। अभी पिछले पैनल में एडटेक और गेमिंग वाले लोग थे, तो ये हम डिफरेंटली एबल्ड के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग के लिए और फिर स्किल ट्रेनिंग के लिए, इस पे हम मिलके काम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि हमने स्किल में कोशिश करके कुछ ले आए थे $20 मिलियन हम,
स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स। तो इस सेक्टर में भी हम स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स ला सकते हैं, विच इज़ बेसिकली अट्रैक्टिंग जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनका CSR हम लेके आए, दैट कम्स बाय वे ऑफ सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो अगर हम सरकारी विभाग, सेवाभावी संस्थाएं और कॉरपोरेट सेक्टर हम सब मिलके काम करें तो हम अपनी सोसाइटी में जो 5 से 10% लोग दिव्यांग हैं उन सबको ज़िंदगी में सक्षम कर सकते हैं। वी कैन मेक देयर लाइफ बेटर, मोर कंफर्टेबल, मोर प्रोडक्टिव। थैंक यू। बहुत ही अच्छे सुझाव एक्शन ओरिएंटेड भारत सरकार के उच्च अधिकारी की तरफ से आपको मिले, तो मेरे जो कॉरपोरेट कोलीग्स हैं यहाँ पे, आई एम श्योर कुछ टेक अवे जरूर लेके जाएंगे और हाथ आगे बढ़ाएंगे इस सेक्टर को और सुदृढ़ बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश अग्रवाल जी आपके इन विचारों के लिए, और डेफिनेटली हम इसको आगे फॉरवर्ड ले जाने के लिए आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ वो क्षण जिसके लिए आप सभी को इंतज़ार है। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राजीव कुमार जी हम सब के बीच हैं, जो कि करंटली अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं 15 मई 2022 से, भारत के भारतीय निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये विभाग का चार्ज लेने से पहले आप चेयरमैन पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड थे। आप एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी बिहार झारखंड रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। 1984 में आपका इस सेवा में पदार्पण हुआ था और सुपरएनुएशन फरवरी 2020 में, लेकिन भारत सरकार ने उनको इस उच्च ओहदे पे बिठाया तो उनकी काबिलियत की पूर्णतः अप्रूव करता है और उसका सबको फ़ायदा हमें मिल रहा है कि इलेक्शंस हमारे यहाँ बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आपके इलेक्शन कमिश्नर के समय में इलेक्शंस हुए थे कई सारी असेंबलीज़ में, जैसे बिहार 2020 में, असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कोविड के बीच में मार्च अप्रैल 21 में, और गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश रिसेंटली अभी 2022 में। तो सभी सुचारू रूप से हुए, आप सबको उसकी रिजल्ट्स मालूम हैं और सभी अच्छे तरीके से हुए हैं। आप बहुत ही कमिटेड रहे हैं अपने जीवन काल में और सभी जगह पे ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। सोसाइटी में कैसे टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हो सकती हैं या लेजिस्लेशन या कानून को कैसे बदला जाता है, नई पॉलिसीज़ कैसे लाई जाती हैं, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को रोकने के लिए, जो कि बहुत ही गरीब डिपॉजिटर्स जो कि कई बार चकमे में आ जाते थे उसको रोका, और इलिसिट डिपॉजिट जो एक इलीगल, मैं कहता हूँ कानून के अगेंस्ट जो एक डिपॉजिट होता था, उस स्कीम को इन्होंने हटाया, और रेगुलेशन एक्ट में, बैंकिंग एक्ट में काफ़ी प्रावधान लाए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की रॉन्ग डूइंग्स को काफ़ी ठीक किया। तो काफ़ी कुछ योगदान आपका रहा है इसमें, और आज हम लोग बहुत ही लाभान्वित हैं उनकी इस प्रेजेंस से। हम कुछ दिन पहले मिले थे उनको आमंत्रण देने के लिए डॉक्टर अग्रवाल के साथ, जो उनका इस सेक्टर के प्रति जो रुझान है वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है। बहुत ही गूढ़ उनके विचार है इस सेक्टर के लिए। और मैंने एक फंक्शन भी अटेंड किया था कुछ दिन पहले जो इलेक्शन ऑफिस से ऑर्गेनाइज हुआ था, बहुत ही सुचारू रूप से, और जो आपका एक इंटरेक्शन था वहाँ पे लोगों से, वो देखने लायक था। नॉर्मली आपको मिलता नहीं है कि एक उच्च स्तर का अधिकारी हर आदमी से, हर इंसान से, हर बच्चे से मिल रहा है, और उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राजीव कुमार जी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी, श्री लव वर्मा जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, श्री डॉक्टर MP पूनिया, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर संदीप भार्गव, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं या वेब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। जब आपके बीच में डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी हैं, जो जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सबके एक प्रेरणा स्रोत हैं।
जब वो मुझसे मिलने के लिए आए थे आमंत्रित करने संदीप जी के साथ, तो मुझे लगा कि ये तो हम सबकी ड्यूटी है जिसको वो निभा रहे हैं। एक्चुअली जब भी कभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के बीच में या उनके किसी कारण या कॉज के लिए आना का आमंत्रण मिलता है तो मैं सबसे पहले स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि वो एक तरीके से ना सबके प्रेरणा स्रोत हैं। उनके साथ रहने से उनकी मनस्थिति, उनकी आत्मशक्ति, उनका बल, वो सब आपको भी इतनी प्रेरणा देता है कि जितना काम कर सकते हैं उससे और ज़्यादा लगन से काम करें। ये बल हमेशा मिलता है और डॉक्टर जितेंद्र जी से भी ये बल हमें सबको मिलता है। उन्होंने सबके लिए ताली बजवाई, उनके लिए भी एक बार सब जोर से ताली बजाना जरूर बनता है। और जो सार्थक की टीम है जो अपना समय देती है इसमें, जैसे डॉक्टर पूनिया ने बताया, जैसे कॉरपोरेट्स के लोग हैं, संदीप जी हैं, भार्गव साहब हैं, सब लोग हैं, राजेश जी हैं, लव वर्मा साहब हैं, ये समय देने से मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनको खुद को भी बहुत मन में शांति रहती होगी और बहुत आत्मबल मिलता होगा। इन सब के लिए भी मैं भी इनको धन्यवाद देता हूँ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप सबकी तरफ से भी इन सबको एक धन्यवाद तालियों के माध्यम से बनता है। सर्वप्रथम मैं सार्थक को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी और सबकी तरफ से कि वो पीडब्ल्यूडीज़ के लिए जो सबसे बेसिक मुद्दा है, जिससे कि उसकी एक सार्थकता जो है वो बनी रहे और उसका सम्मान बना रहे समाज में, उनको रोज़गार दिलवाना, उनकी स्किल्स को आगे बढ़ाना। एंड इफ़ यू लुक वेरी केयरफुली, as I always believe very firmly, and it's my conviction, that the persons with disabilities are actually more able than all of us. उनका कोई ना कोई एक अंग जरूर, एक सेंस जरूर थोड़ा डिसेबल्ड है, बट उनकी एबिलिटी कहीं गुना ज़्यादा दूसरे सेंसेस में बढ़ी हुई है। अगर हम देखें, उनकी सहनशीलता देखें, उनका अंतरात्मा देखें, उनकी अंदर की रोशनी देखें, एक उनके अंदर का एक द्वंद्व देखें, उनकी एक म्यूज़िक देखें, हर चीज़ कहीं ना कहीं उनकी बढ़ी हुई है। समस्या समाज में क्या है कि बस उनको हम एक सहानुभूति की तरह से देख लेते हैं। दे डोंट नीड सिंपैथी, दे जस्ट डोंट नीड सिंपैथी, दे नीड एक्चुअली इक्विटी एंड इक्वलिटी। अगर उनको बराबरी और जो असमानता है उसको ऊपर तक लाके वहीं खड़ा कर दें उसी पायदान पर, तो वो हम सब में से किसी से भी पीछे नहीं है। और सार्थक इस चीज़ को लगातार स्किल्स देकर और जॉब दिलवाकर प्रूव करता जा रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जैसे अभी आपको बताया पहले भी, कि करीब 2.68 करोड़ के करीब पीडब्ल्यूडीज़ हैं देश में, लेकिन वास्तव में जो ये डिसेबिलिटी है, इसका नंबर कहीं भी और भी तरीके से ज़्यादा हो सकता है, जो कि असेसमेंट्स भी हैं। बट एनीवे, जो भी ये नंबर है, उन सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में जितनी भी असमानता और जितनी भी परेशानी का सामना करना है, वो हम सबका एक दायित्व भी है और एक हम सबका हमें करना भी चाहिए कि उनके साथ में हम रहें। इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक प्रश्न है, तो इनमें से करीब करीब 84 लाख लोग हमारे इलेक्टोरल रोल्स में मार्क्ड हैं। तो कमीशन ने बीड़ा उठाया हुआ है कि कमीशन ऐसे मापदंड सेट करे कि जब वोटिंग की लाइन लगे तो उस लाइन में हर व्यक्ति ये देखे कि उनको कैसे बराबरी दी जा रही है पीडब्ल्यूडीज़ को, और कैसे उनको इक्वल मौका दिया जा रहा है। सो जो वॉट एवर वी डू बिकम ए बेंचमार्क फॉर अदर्स टू फॉलो। तो हमने क्या क्या सुविधाएं उनको दी हुई हैं और हम उसको बहुत ही कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो है कि करीब 84 लाख ऑलरेडी हमारे यहाँ मार्क्ड है। हमने राजेश जी के विभाग से और स्टेट्स से डाटा लिया है कि कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, ताकि उन सबको हम अपनी वोटर लिस्ट में मार्क कर सकें। मार्क करने के बाद अब आगे क्या करेंगे, तो हमने उनके लिए एक ऐप बनाया है, सार्थक ऐप। वो लोग हमसे कोई भी सुविधा वोटिंग के समय या रजिस्ट्रेशन के लिए
डिमांड कर सकते हैं। फिर एक और व्यवस्था की कि हर पोलिंग स्टेशन पर प्रॉपर ग्रेडियंट का एक रैंप होना मस्ट है, so that it is accessible. So elections not only have to be inclusive but also accessible. तो पूर्णतः समावेशी हो और पूर्णतः सुगम भी हो। तो सुगम और समावेशी दोनों चीज़ों को करने के लिए हमने उनको एक रैंप दिया और साथ में ये भी एक फैसिलिटी दी, अगर वो ये चाहते हैं तो हम एक आदमी का भी वोट लेने उसके घर जाएंगे, उनके घर से जाके पूरी टीम उनका वोट लेके आएगी। और ये वोट लेने की एक कोई ये नहीं है कि एक हक है, वो तो है, लेकिन एक ये स्टेटमेंट भी है, ये हमारा चुनाव आयोग की तरफ से एक स्टेटमेंट भी है कि हम उनको उनके हक को पूरा करने के लिए उनके घर जाके भी वोट लेंगे, यानी किसी भी सूरत से उनको इसमें भागीदार जरूर बनाएंगे। और ये भागीदारी क्या है? ये भागीदारी उनको वॉइस देती है, उनको अपने हर इलेक्शन में भाग लेने की वजह से अपने मुद्दों को भी आगे लाने की एक मौका प्रदान करती है। इसीलिए हमने बहुत से पीडब्ल्यूडी आइकन्स भी बनाए हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और अब सार्थक भी जितना इनका एनजीओज़ हैं जो एक नेटवर्क बनाया है वो भी हमारे साथ जुड़े और हम उनके साथ जुड़ के उनके नेटवर्क को भी पूरा का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी आउटरीच के लिए। सो वी इनवाइट सार्थक टू जॉइन अस एंड एक्सटेंड ऑल द फैसिलिटीज टू द पीडब्ल्यूडीज। जो एक सपना आप देख रहे हैं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का या एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने का, बहुत ही समय ये सपना आपने देखा है, और जब अच्छा सपना देखते हैं तो उसको पूरा होने में सब लोग मिल जाते हैं अच्छे, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। देयर इज़ एनफ गुडनेस इन द सोसाइटी एंड आई एम श्योर एवरीबडी वुड कोऑपरेट एंड वुड work towards achieving this dream of yours, and I very distinctly see that in times to come we'll have a university which would be training the professionals who can in turn train the skills in the PWDs. जैसे विभिन्न प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें आपने अभी सब जिक्र किया। राजेश जी ने बहुत ही जिसको मुझे कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल बातें वन टू वन आफ्टर अनदर, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने कहीं, समय कम था इनके पास, नहीं तो टेक्नोलॉजी से लेके उसकी मानसिकता, उसकी एबिलिटी, जो छोटे छोटे किस्से उन्होंने सुनाए हैं राजेश जी ने, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि उनके अंदर में एक दिल है जो वो उसको देखता है। एक ये सिर्फ सचिव वाले तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अंदर में एक लगन भी है जिसके साथ काम कर रहे हैं। तो सरकारी और एनजीओ की सिविल सोसाइटी के माध्यम से जुड़ के निश्चित रूप से और हम लोग उसको एक बल देंगे अपने चुनावों में इस विषय पर उनको आगे लाके, ताकि उनके सारे मुद्दे भी आगे आ सकें। इसलिए मैं सार्थक को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और अपना कमिटमेंट भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कमीशन निश्चित रूप से हर समय पे पीडब्ल्यूडीज़ के पूरे सम्मान और पूरी भागीदारी को आगे लाने के लिए हमेशा कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजीव कुमार जी को। उनका ये आश्वासन, उनकी ये प्रण आई थिंक हम लोगों को और डबल स्पीड से काम करने को दौड़ाएगा, और हम उसके साथ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर और काम करेंगे। जो हमें वो कार्य देंगे हम उसको अच्छे से पूर्ण करने में सहयोग देंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आगे चलते हुए मैं श्री राजीव कुमार जी से अनुरोध करूँगा कि अब 3 लॉन्चेस हमने करनी हैं, उसको आप एज ए मुख्य अतिथि आप ज़रूर लॉन्च करें।
एक वर्चुअल जॉब फेयर चल रहा है हमारा सर आज की तारीख में, उसमें करीब 17 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और 300 पार्टिसिपेंट्स हैं कैंडिडेट्स, तो उसको आप ओपन करें आपके कर कमलों से। वर्चुअली है सर वो, तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो वो फेयर के ऊपर निष्ठा। Any sound in this? थैंक यू सर। जी यस सर, थैंक यू। उसके बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सार्थक की एनुअल रिपोर्ट वो भी डिजिटल हम लॉन्च कर रहे हैं, उसका भी लॉन्च आपके कर कमलों द्वारा हो। थैंक यू सर। एक और रिपोर्ट है जो कि नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट है, उसको भी आप रिलीज़ करें।
सर। ये दोनों रिपोर्ट्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं डिजिटली। इस प्रोग्राम के अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी का, और मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुधीर गुप्ता को, जो कि हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेरे कोलीग ही हैं। पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट, ऑलमोस्ट 35 साल का एक्सपीरियंस, काफ़ी डिपार्टमेंट्स ऑफ रेडियोलॉजी और लार्ज हॉस्पिटल्स कैटर किए और कुछ हॉस्पिटल्स के को फाउंडर भी हैं। एंड एक सोशल इम्पैक्ट हेल्थ केयर कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर भी हैं। HIV एरिया में और सर्वाइकल कैंसर और मेंटल हेल्थ में काम करती है। हमारे साथ 10 साल से जुड़े हुए हैं। तो सुधीर जी को आमंत्रित करूँगा कि अपना धन्यवाद प्रस्ताव पेश। Respected Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ji, Rajesh Agrawal ji, Secretary Department of Empowerment of PWDs, MP Punia ji, Vice Chairman AICT, Love Verma ji, Dr. Jitendra Agrawal और संदीप जी, और हॉल में उपस्थित सभी सभागण। आज के इस इनॉग्रल सेशन में हमने इतने सारे महानुभावों को सुना। हमारा सौभाग्य है कि आज राजीव कुमार जी हमारे बीच में हैं और मुझे इस पैनल में एक वोट ऑफ थैंक्स देने का प्रिविलेज मिला है। तो राजीव कुमार जी ने, जैसा कि इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया, इनकी सेंसिटिविटी के बारे में, कि दिव्यांगजनों के बारे में कितना ये सेंसिटिव है, और जो मैंने खुद देखा, मैं भी उस टीम में था जब हम लोग आमंत्रित करने गए थे राजीव जी को। तो जैसे ही हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात उनसे शेयर करी, तो उन्होंने इमीडिएटली कॉल करके अपने जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे वो एक्टिवेट कर दिए, और उन्होंने इमीडिएटली हमें समय दे दिया कि नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा इस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि वो बता रहे थे कि मैं हर जगह ऐसी जगह जाना चाहता हूँ। सो हम बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके कि आपने आज समय निकाला, और आज हम आपके विचारों से और आपकी सोच से और आपके लिए गए एक्शंस, जो कि बहुत सारे एक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन में दिव्यांगजनों को इंक्लूड करने के लिए, वो सब आप उन पे बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं। उन सब चीज़ों के लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। थैंक यू सर। राजेश अग्रवाल जी, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ PWDs के, जो कि दिव्यांगजनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो कि आने वाले समय में, जो कि बहुत यंग डिपार्टमेंट है, कुछ साल पहले ही बनाया गया था, और वर्मा जी पहले उसके सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो राजेश अग्रवाल जी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हैं आज के दिन हमारे दिव्यांगजनों के लिए, क्योंकि उनके द्वारा इनिशिएट किए गए या स्टार्ट किए गए काम इस डिपार्टमेंट की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स दिव्यांगजन, उसको बहुत आगे लेके जाएगा। और जिस तरह के विचार उन्होंने शेयर किए, चाहे वो उनके छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस उन्होंने देखे एलिम्को में, या वो ट्राइगर को ट्रेन करने वाले बच्चों का इंसिडेंट उन्होंने सुनाया, दैट शोज़ द सेंसिटिविटी और कितना उनकी कमिटमेंट है इन चीज़ों के लिए। और एज ही राइटली सेड कि डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में कई दफ़ा फंड्स को लेके दिक्कत हो जाती है, और प्रोग्राम्स जो हैं वो ढीले हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। तो उनकी ये सजेशन बहुत ही कारगर है कि कुछ NGOs के साथ मिलके, CSR ग्रुप्स के साथ मिलके सारे प्रोग्राम्स को आगे लेके जाया जाए। और मेंटरिंग की उन्होंने बात की, NCERT की बात की, एक एग्रीगेटर टाइप के जैसे सार्थक की उन्होंने बात की, उनके साथ मिलके काम किया जाए। आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त हमें एक्शन पॉइंट्स मिले, सोचने के लिए भी मिले, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी प्रेजेंस में डिपार्टमेंट डेफिनेटली बहुत आगे जाएगा। और बहुत आज हम उनके विचारों से और उनकी सोच से और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट में या सोचे जा रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनसे अवगत हुए। तो हम बहुत आभारी हैं सर आपके, एंड वी आर वेरी श्योर कि सार्थक आपके साथ, आपके डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और सार्थक जैसी और भी बड़ी संस्थाएं, हम लोग सब मिलके आपके साथ इस कॉज को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस हियर। MP पुनिया जी, जो कि बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि शेयर किया, चंडीगढ़ से वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पहले चंडीगढ़ में, फिर यहाँ पे आने के बाद
बहुत दफ़ा मुझे पुनिया साहब से मिलने का मौका मिला डॉक्टर अग्रवाल के साथ में, और ये हॉल जो है वो ये जो प्रेमिसेस है ये हमें ये लगता है कि ये सार्थक का अपना ही प्रेमिसेस है, हमें इतनी बेतकल्लुफ़ी यहाँ पे महसूस होती है हमेशा। सो थैंक यू वेरी मच सर। और जो आपने सार्थक को सपोर्ट किया है, जो बहुत सारे ऑफिसर्स को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टेक्निकल लोगों को हमारे साथ जोड़ा है और उनको सेंसिटाइज़ किया है अपने अपने लेवल पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप फिर से हमारे साथ जुड़े हैं सर। लव वर्मा जी ने बहुत इम्पॉर्टेंट 2-3 छोटी छोटी चीज़ें शेयर करी हमारे साथ, कि जो एक एक्ट जो कि जिसमें उनका बहुत ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट रहा, जो बनाया गया पीडब्ल्यूडीज़ के लिए, वो उसमें बहुत कुछ है, उसमें बहुत सारी एम्पावरमेंट है डिपार्टमेंट के लिए भी और हर दिव्यांगजन के लिए भी और बहुत सारी एनजीओज़ के लिए भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद बहुत सारी उस अपनी पावर को पहचान नहीं पाया, या हम दिव्यांगजन उस अपनी पावर को पहचान नहीं पाए कि हमें क्या मिलता है उसमें से, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन शायद उतनी एक्टिवली और उतनी ज़ोर से नहीं हो पाई। तो ये उन्होंने आज उस बात को फ्रंट में दोबारा से लाया है, तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट की ओर से भी और सब दिव्यांगजन उस एक्ट को पढ़ें और अपने अधिकारों को जानें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जानें, अपने प्रति भी और लोगों के प्रति भी। और सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने उसको यू हैव ब्रॉट इट टू द फोर अगेन। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल के बारे में कुछ भी कहना आई थिंक बहुत ही कम लगता है हमेशा। हम सब लोग जो यहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग एवरीबडी ऑन द डायस एज वाज टोल्ड बाय देम, इज़ हेयर बिकॉज ऑफ हिम। यू नो, मैं डॉक्टर अग्रवाल को तब से जानता हूँ जब हम लोग एक ही एरिया में प्रैक्टिस करते थे, और इनकी परिवार मेरे पेशेंट्स भी होते थे। सो वो जो एंथुसियाज्म उनमें तब होता था, लेकिन बीच में जब ये आई साइट का इशू क्रिएट हुआ, 3-4 साल बहुत स्ट्रगल किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद लेकिन जो उन्होंने बाउंस बैक किया जिस तरीके से, और उसमें योगदान बहुत सारे लोगों का रहा है, जिसमें से संदीप जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर मैं कहूँगा हैं, बिकॉज इन्होंने सबसे पहली ग्रांट दी थी। आप जानेंगे तो हैरान होंगे कि सबसे पहली पीपीटी सार्थक के लिए वो संदीप जी ने बनाई थी अपने हाथ से। सो और डॉक्टर अत्रे, डॉक्टर कालरा जी, प्रोफेसर नीलू और प्रोफेसर अशोक कपूर, बहुत सारे नाम हैं जो हमेशा से साथ में रहे, हाथ पकड़ा। बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, सबने इस कॉज को पहचाना, डॉक्टर अग्रवाल की उस एनर्जी को पहचाना, उनका जो सोच है और जो एम्पावरमेंट की जो सोच है स्पेशली, उसकी पायसनेस को पहचाना और उनके साथ जुड़े रहे। और हम सब लोग आज उनसे प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं। सो डॉक्टर अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच, और पर्सनल धन्यवाद भी कि आपने मुझे इस कॉज के साथ जोड़ा, और आज हम मिल के काम कर रहे हैं इकट्ठे। और संदीप जी के बारे में तो हम सब जान ही गए हैं कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू डू एवरीथिंग, और आज तक वो साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत सारा समय अपना देते हैं, बहुत सारे अपने एनर्जी देते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, CSR का फंड और ये वो सब ऑर्गेनाइज करने में आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल है। सो थैंक यू वेरी मच संदीप जी। और आज का ये फंक्शन, आज का ये प्रोग्राम, आज की और 9th ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये सिर्फ दिव्यांगजनों की वजह से पॉसिबल है। उनके पेरेंट्स का, उनका खुद का जो एंथुसियाज़म है, उनका जो भाव है, उनका जो आगे नेवर डाई वाली जो स्पिरिट है, उसकी वजह से ये संस्था सार्थक और बहुत सारी संस्थाएं सार्थक जैसी वो आज आगे बढ़ रही हैं। और मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनमें से बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ नहीं फिजिकली आए या हमने एनकरेज नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से। सो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भरोसा करते हैं सार्थक पे और सार्थक जैसी और संस्थाओं पे। और क्योंकि हमें अपने एक्सपीरियंसेस याद आते हैं जब हम किसी को बोलते हैं कि आपको एक फ्री ट्रेनिंग मिलेगी, फिर जॉब भी मिलेगी, बोलते हैं क्या बातें कर रहे हो यार, कैसी कैसी बातें करते हो आप, फ्री कुछ मिलता है क्या? या ऐसा कुछ होता है कि आप घर में बुलाने आ रहे हो हमें और बताने आ रहे हो हमें, और अब ट्रेन भी करोगे, पैसा भी नहीं लोगे और जॉब दिलवाओगे? तो वो जो भरोसा धीरे धीरे करके जो सार्थक ने पैदा किया है, उस अपनी स्थिति में आपने भरोसा जताया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसके अलावा सार्थक टीम के सभी सदस्यों का जो आज यहाँ लगे हुए हैं और बहुत सारे दिनों से इस पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने में योगदान कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्था के AICT के सभी उन एम्प्लॉयज़ का जिन्होंने बहुत योगदान किया है, हमेशा किया है, इस बार भी किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसके बाद हम लोग विल बी प्रोसीडिंग फॉर लंच आफ्टर दिस प्रोग्राम। तो ओवर टू संदीप जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुधीर जी, आपके काइंड वर्ड्स और आपका धन्यवाद प्रस्ताव। एक मेमेंटोज देने की इवेंट है अभी, आप हमारे कोलीग्स आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही साइलेंटली जो हम सब लोगों को साइन लैंग्वेज दे रही हैं, आई थिंक सुमैया है यहाँ पे और नाज़मीन, 2 जने हमेशा हमारे साथ रहती हैं और साइन लैंग्वेज से आप सबको अवगत कराती हैं, जिससे आप पूरा आनंद उठा सकें इस इवेंट का। उनको भी धन्यवाद। I'd request हमारे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स सुरेश गुप्ता सर, राजकुमार सर, राज कपूर सर एंड राजीव गुलाटी सर टू प्लीज़ हमारा आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए हमारे गेस्ट को प्लीज़ ये मोमेंटोज प्रदान कीजिए। थैंक यू सो मच राजीव सर ज्वाइन करने के लिए सेशन। थैंक यू राजेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू लव वर्मा सर। थैंक यू पुनिया जी। थैंक यू संदीप सर फॉर मॉडरेटिंग दिस सेशन। राज कपूर सर, प्लीज़ सुधीर गुप्ता सर को वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच सुधीर सर। थैंक यू सुरेश सर, राजीव सर। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गेस्ट एंड आवर एडवाइजरी बोर्ड फॉर अ ग्रुप पिक। सर प्लीज़ एक ग्रुप फोटो। सर फ्रेंड्स, यस सर, इसके आगे।